السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے زانی عورت سے شادی کی ممانعت کے بارے میں روایات۔ ایک عورت کہبہ گری کا کام کرتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح ایک شخص مدثر نامی نے بھی ایک بدکار عورت سے شادی کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ حضرت عمار ابن یاسر اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ڈیورس ہوا جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور اس کے باوجود اس کا شوہر بنا رہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ایک کیس پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر کوڑوں کی سزا لاگو کی، پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ قاضی ابو بکر حساس نے ان روایات کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ دونوں زانی تھے۔ آیت میں بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ زانی شادی نہیں کرتا سوائے زانیہ کے یا مشرکہ سے، اور بد کردار عورت شادی نہیں کرتی سوائے بدکار مرد یا مشرک شخص سے، اور ایمان والوں پر ایسا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زانیہ یا زانی کی شادی مشرک یا مشرکہ سے کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی شادی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے، اور فرمایا تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور نہ مشرک مردوں سے شادی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں دراصل کہا یہ گیا ہے کہ زنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ جو مسلمان اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالحہ لوگوں سے اس کا رشتہ قائم ہو۔ اس کا فعل اس قدر قابل نفرت ہے کہ یا تو وہ اپنے ہی جیسے زانیوں سے رشتہ جوڑے یا مشرکوں سے تعلق قائم کرے جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ زانی کو اس کے فعل کی برائی بتلائی گئی ہے کہ وہ ایسا ہی ناپاک ہے جیسا مشرک مرد یا عورت ناپاک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک مشرک نجس ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ یعنی کہ 28ویں آیت۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان خواہ زانی ہی صحیح مشرک سے شادی کرے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ کام یعنی بدکاری یا زانی عورت یا مشرک عورت سے پاک دامن کی شادی مومنین پر حرام ٹھہرا دی گئی۔ آیت کے اس حصے میں ذالکہ یہ فعل کی تفسیر یوں کی گئی ہے، ذالکہ سے مراد زنا اور بدکاری ہے۔ گویا بتلایا گیا ہے کہ زنا مومنین پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ حرام ہے مومنین پر کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجر زانیوں کو دیں یا اپنی بیٹوں کی شادیاں کسی کی بدکار کو جانتے بوجھتے بدکار عورتوں سے کریں۔ زانی اور زانیہ کا باہم نکاح جبکہ ان کا مقصد اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دینی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا سے توبہ نہیں کرتے تو ایسا نکاح حرام ہے، مگر دینی احکام کی روح سے یہ نکاح باطل اور کل عدم نہیں ہوگا۔ نکاح کے ثمرات میں سے حصہ ملنا، یہ تمام احکام جاری ہوں گے۔ حرام ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک پاک دامن مرد زانیہ سے شادی کرے اور شادی کے بعد وہ اسی روش پر قائم رہے، اور مرد خود پاک دامن ہونے کے باوجود اسے منع نہ کرے، یا اس کے برعکس صورت حال ہو کہ پاک دامن عورت بدکار مرد سے شادی کرے اور اس کی بدکرداری پر اسے منع نہ کرے تو یہ فعل حرام ہوگا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا
लहुम शहादातन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तहमत लगाएं फिर वो उस पर 4 गवाह ना लाएं तो तुम उन्हें 80 कोड़े मारो और तुम कबूल ना करो कभी उनकी गवाही। यही नाफरमान लोग हैं, मगर जिन लोगों ने उसके बाद तौबा कर ली और उन्होंने इस्लाह की तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ज़ना की सज़ा शहादत, इकरा या क्राइम की बुनियाद पर लागू होती है। ज़ना के लिए गवाहों की तादाद कम अज़ कम 4 होनी ज़रूरी है। यह वाहद सज़ा है जिसके लिए 4 गवाह होने ज़रूरी हैं। सूरत अल-निसा में फरमाया वल्लती यातीनल फाहिशाता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बातुम मिनकुम। तुम्हारी औरतों में से जो बदकरदारी और का इर्तिकाब करे तो 4 मुसलमान मर्दों की गवाही मांगो। लौला जाऊ अलैहि बि अर्बाति शुहदा फइज़ा लम यातू बिशुहदाई फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल कासिबून। जो लोग तोहमत तराशी के मुर्तकब हुए वो अपने दावे पर 4 गवाह नहीं लाए, सो ऐसी सूरत में जबकि ये लोग गवाह पेश नहीं कर सके तो बस अल्लाह के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। गवाहों के मेयार के बारे में मुख्तलिफ कुतुब हदीस फ़िक़्ह में मदरजा झैल शराइत बयान हुई हैं। गवाह बालिग हो वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों यानी कि बालगों में से 2 गवाह पेश करो। रजल जवान मर्द को कहते हैं। आकिल हो, मजनून महबूतुल हवास ना हो, गूंगा आदमी शहादत के अहल नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसकी शहादत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, अगरचे वो बिल्कुल वाज़िया अशारात की सूरत में हो या लिख कर दे, किसी भी सूरत उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। गवाह का आंखों वाला होना भी ज़रूरी है। जिस पर कज़ब की सज़ा लग चुकी हो वो भी काबिल कबूल नहीं। आदि शराबी, पेशावर गाने बजाने वाले, नाचने वाले भी काबिल कबूल नहीं हैं। ऐसा शख्स जो खुद इस तरह की काम करता हो जिन पर हद लागू हो सकती है उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। जिस शख्स के साथ मुल्ज़म की अदावत हो उसकी शहादत भी मरदूद है। गवाह के लिए आदिल होना ज़रूरी है। आदिल किसको कहा जाता है उसके लिए ये शराइत हैं। अस्लाम पर इस्तकामत, अक्ल मुतदिल हो, नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू हो, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे, हराम ना खाए, हरामकारी ना करे, सगीरा गुनाहों पर इसरार ना करे, उसकी नेकी का पहलू बुराई पर गालिब हो, बाज़ाहिर हयादार हो। उन तमाम सिफ़ात की हामिल शख्स को आदिल कहते हैं। गैर मुस्लिमों की शहादत गैर मुस्लिमों के मामले में ही काबिल कबूल होगी। मुसलमान के बारे में गैर मुस्लिम की शहादत नागज़े हालात में ही काबिल कबूल होगी। शोहर की शहादत बीवी के हक़ में या बीवी की शहादत शोहर के हक़ में या बाप दादा की शहादत बेटे पोते और पड़पोते के हक़ में या उसके बरक्स मकबूल नहीं होगी। ज़ना के केस में औरत की शहादत काबिल कबूल नहीं है। समाई शहादत यानी शहादत अलग शहादत मोतबीर नहीं बल्कि ऐनी शहादत ही मोतबीर होगी। किसी काम में शराकत करने वालों की बाहमी शहादत या आजर यानी कि मुलाजमत देने वाला की शहादत मुस्ताजिर जिसे मुलाजमत दी गई मुलाजिम के हक़ में काबिल कबूल नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ज़ना के 4 गवाहों का एक ही वक़्त में अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। दीगरे आइमा इस शर्त को ज़रूरी नहीं समझते। काजी ने अगरचे सारा मामला अपनी आंखों से देखा हो तब भी वो महज अपनी ज़ात शहादत की बुनियाद पर फैसला नहीं दे सकता जब तक कि 4 गवाह शराइत के मुताबिक गवाही ना दें। फ़िक़्ह की किताब में लिखा है कि जानबूझकर जमात की नमाज और जुम्मा तर्क करने वाले शतरंज
चौसर खेलने वाले, सूद खाने वाले, बिला वजह हिजू करने वाले, शुरा और फासिक की गवाही भी काबिल कबूल नहीं। ज़ना के सबूत के लिए जानी या जानिया का इकरार भी काफ़ी है, चाहे कोई भी गवाह मौजूद ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास नामी शख्स को गवाहों की गवाही के बगैर उसके अपने 4 यार इकरार के बाद संसार कराया था। गामदिया या जहनिया नामी खातून को भी उसके अपने बार बार इकरार के बाद रिजम कराया था, लेकिन बच्चे की विलादत के बाद शीरफार की मुद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार किया था। कुरान की बुनियाद पर सबूत ज़ना, अगर कराइन की बुनियाद पर ज़ना साबित हो जाए तो कोड़े मारने या संसार करने की हद जारी नहीं की जाएगी। इस सूरत में ताज़ीर होगी जो काजी की स्वाबदीद पर मुनहसर होती है कि वो जुर्म की नोयत की एतबार से ताज़ीरी सज़ा देने का मजाज है। इस सिलसिले में सूरत अल-नूर की आयत नंबर 2 में फरमाया है, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि, और तुम्हें इन दोनों पर रहम ना आए। अल्लाह ताला के दीन के नफाज के बारे में फरमाया गया है, सज़ा नाफिज करते हुए तुम्हारे दिल में मुजरमीन के लिए खामखा नरमी ना आने पाए। इस मौके पर एक बात तो ये जहन में रहे कि उस शख्स ने अल्लाह की हद को फलांगते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। दूसरा ये कि मैं सज़ा भी अल्लाह के हुक्म के इत्तबा में दे रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे हाकिम को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा जिसने हद में कमी की होगी। उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहेगा कि तेरे बंदों पर शफ़क़त और रहमत की खातिर ऐसा किया। उसे कहा जाएगा कि क्या तू लोगों पर मुझसे ज़्यादा रहम करने वाला है? फिर उसे आग में फेंकने का हुक्म दे दिया जाएगा। इस तरह उस हाकिम को भी बुलाया जाएगा जिसने एक कोड़ा ज़्यादा मारा होगा, उससे भी उसके फेल के बारे में सवाल होगा और अल्लाह फरमाएंगे, क्या तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा फैसला करने वाले हो? फिर उसे भी जहन्नम में फेंकने का हुक्म दे दिया जाएगा। वैसे भी बदकारों पर रहम करने का मतलब इस्लामी मुआशरे के साथ बेरहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हदीस मुबारक भी मौजूद है कि पहली कौमों की तबाही का एक बायस ये भी था, एक वजह ये भी थी कि उनमें कानून का एहतराम और उसके नफाज में मसावत बाकी नहीं रही थी। हदूद में नरमी से अंदरूनी खलफशार पैदा होता है और उनके नफाज से बरकतें नाज़िल होती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की एक हद को जारी करना इतनी बरकतों का बास बनता है जितनी 40 रोज़ बारिश बरसे तो उससे जितनी बरकत फैलती है। ज़ना जैसे कबीर फेल की रोकथाम के लिए शरीयत ने महज सज़ा नाफिज करने को काफ़ी नहीं समझा, बल्कि सज़ा तो इस्लामी शरीयत की रूह से आखिरी इंसदादी ज़रिया है। इस्लाम इसकी रोकथाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर बंदोबस्त करता है। लोगों को अल्लाह ताला का खौफ याद दिलाता है कि वो तुम्हारी तन्हाई और खिलवत की तमाम हरकतों को बाखूबी जानता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा यस्नऊना, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे मुकम्मल तौर पर आगाह है। और वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे दिलों के भेद यानी कि राज खूब जानता है। इस्लाम आखिरत और कब्र में बदकार मर्दों और औरतों को सख्त सज़ा की वईद सुनाकर लोगों को उस बुरे फेल से रोकता है, लोगों की अखलाकी तरबियत करता है, उनकी अखलाक इस कदर अच्छी हों कि वो खुद ही बदकारी से नफरत करें। दीनी ज़िंदगी में बदकारी की कानूनी सज़ा से आगाह भी करता है कि लोग उस सज़ा के खौफ से उस जुर्म का इर्तिकाब ना करें। सज़ा का जिक्र सूरत अल-नूर की आयत नंबर 2 में किया गया है। जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए निकाह का सिलसिला रखा है। ये तरीका शरीफाना, बावकार और फितरी है। इस तरीके में कोई कबाहत नहीं बल्कि फ़ायद ही फ़ायद हैं। इस्लाम इस बात की हौसला अफजाई करता है कि निकाह की उम्र को पहुँचने वाले हर बच्चे या बच्ची का जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए।
अगर किसी के पास निकाह के अखराजात और इसके बाद अहल व अयाल के नफकी का बंदोबस्त ना हो तो ऐसे शख्स से कहा गया है कि वो रोज़े रखे। उससे उसकी अंदर शहवानी जज्बात में एतदाल व तवाज़ुन पैदा होगा। इस्लाम इन तमाम बातों और इस माहौल का सद्देबाब करता है जो जनाकारी का सबब बनता है। इस्लाम इन रास्तों को बंद करता है जो जनाकारी की तरफ जाते हैं, मसलन मखलूत मजलिसें, गाना बजाना, मौसीकी, रक्स व सरूर की महफिलें, बेहयाई के काम, गैर शरीफाना लिबास, जिनसी जज्बात को उभारने वाले लिटरेचर का मुतालिया, फिल्में, फहश तस्वीर वगैरह। इसके अलावा गज़ बसर निगाहों को कंट्रोल में रखना और गैर महरम औरतों की तरफ निगाहें ना उठाना का हुक्म मर्दों और औरतों दोनों को दिया गया है। औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है और इस्लाम हर इस सुराख को बंद करता है जहाँ से ज़नाकारी को शह मिलती है। आयत मुबारका में ज़ानी मर्द और औरत के साथ इजहार नापसंदीदा किया गया है कि ऐसे लोग इतने घटिया किरदार के मालिक होते हैं और उनकी सोच इस कदर हैवानियत का शिकार हो जाती है कि किसी पाक दामन मर्द या औरत के लिए मुनासिब ही नहीं कि वो इनमें से किसी से शादी कराए। हाँ, अलबत्ता अगर इनमें से कोई तौबा करके अपनी ज़िंदगी को हया और पाक दामने की राह पर चलाए तो फिर उनसे शादी करने में कोई कबाहत नहीं। फरमाया गया है कि ज़ानी मर्द के लिए ज़ानी औरत और ज़ानिया के लिए ज़ानी मर्द ही ज़्यादा मुनासिब हैं, क्योंकि ये दोनों गंदी जहनीत के मालिक होते हैं। कुरान मजीद में इस सिलसिले में इरशाद है कि खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें ही ज़्यादा मुनासिब हैं। सूरत अन-नूर। इसकी वजह यह है कि ज़ानी की अपनी एक जहनीत होती है, उसकी ज़हनी हम आहंगी और तबई मीलान एक हवस परस्त ही की तरफ हो सकता है। उसके मुकाबले में पाक दामन मर्द और औरत की सोच और मीलानात मुख्तलिफ होते हैं और यही दोनों आपस में यगानत से रह सकते हैं। यहाँ ये नुक्ता भी मौजूद है कि ये मुनासिब नहीं है कि जिन औरतों की बदकिरदारी मशहूर हो, जानते बूझते उनसे शादी की जाए। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि अगर ज़ानी मर्द पाक दामन औरत से और पाक दामन मर्द की शादी ज़ानी औरत से कर दी जाए तो ये निकाह मुनक्कद ही नहीं होगा, बल्कि कहा यह गया है कि मोमन मर्द या औरत के लिए शायाने शान और मुनासिब नहीं कि उसका निकाह बदकिरदार से किया जाए। अगर पाक दामन लोगों की शादी के लिए बदकिरदार को मुंतखब किया जाने लगे तो उससे बदकिरदारों की हौसला अफजाई होगी। अगर गैर शादीशुदा मर्द और औरत ज़ना के मुर्तकब हों तो गवाहों के ज़रिए अदालत में जुर्म साबित होने पर दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने ये फेल कबीर बामी रजामंदी से किया है। अगर दोनों में किसी एक को इस गुनाह पर मजबूर किया गया हो तो मजबूर किए जाने वाले को सज़ा नहीं दी जाएगी। नीज़ ये भी शर्त है कि दोनों आकिल और बालिग हों। बाज़ ने दोनों के मुसलमान होने की भी शर्त आयद की है, मगर ये इख्तलाफी अमर है। गैर शादीशुदा ज़ानी जोड़े की सज़ा में 100 कोड़ों की सज़ा तो कुरान मजीद की आयत से साबित शुदा है, लेकिन रवायात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौके पर 1 साल की जलावतनी की सज़ा भी दी है। इस सिलसिले में हज़रत इमाम अबू हनीफा का नुक्ता निगाह ये है कि जलावतनी की सज़ा वाजिब नहीं है, अलबत्ता अगर हाकिम महसूस करे कि मुआशरे की फलाह और मुजरम को महसूस करवाने के लिए या किसी और पहलू से उसे इस इलाके से निकाल देना मुनासिब हो तो उसे जलावतन भी किया जा सकता है। इमाम साहब फरमाते हैं कि जलावतनी की सज़ा तगरीर शुमार होगी। इमाम मालिक और हज़रत इमाम शाफी और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल 100 कोड़ों के साथ जलावतनी भी ज़रूरी समझते हैं, अलबत्ता इमाम मालिक के नज़दीक औरत को जलावतनी ना किया जाए। कोड़ा और दर्जे का हो, ना तो पुराना
और हल्का हो कि सज़ा का मकसद ही पूरा ना हो, और ना ही इस कदर सख्त हो कि मुजरम का चमड़ा उधेड़ दे या हलाकत का सबब बन जाए या हलाकत के करीब कर दे। कोड़े में गांठें ना हों, उसके किसी हिस्से में धात लगी हुई हो, क्योंकि इस तरह हड्डी टूटने या कोड़े की ज़रब की शिद्दत के बढ़ने का सबब हो सकता है। सर, चेहरा या जिस्म के नाजुक हिस्सों को छोड़कर तमाम जिस्म पर कोड़े मारे जाएं, एक ही जगह कोड़े ना मारे जाएं। लुंगी और पजामा वगैरह के अलावा बाकी कपड़े उतरवा लिए जाएंगे। मर्दों को खड़ा करके और औरतों को बैठा कर कोड़े मारे जाएंगे। कोड़ों की सज़ा की सूरत में अगर मरीज़ बीमार हो तो उसके सेहतयाबी का इंतज़ार किया जाएगा। अगर मरीज़ इस कदर कमज़ोर हो कि कोड़ों की सज़ा बर्दाश्त ना कर सकता हो तो उसे हल्की ज़रबें लगाई जाएंगी। इस तरह के एक मुजरम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख जिसमें 100 शाखें हों से सज़ा दिलवाई थी।